So I am starting with the first question today, that is, we have to pass a list to a function and we have to return sum of it. Okay, so the question is, write a function to return sum of all elements stored in a list. ओके, एक लिस्ट है, उसमें जितने भी नंबर्स हैं उसका सम हमें रिटर्न करना है. ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं. सो आई एम राइटिंग द मेथड. So I'm defining a function def. The name I'm giving to the function is sumList, and I'm taking a list here. Okay, so lst. I have to find out sum of all elements. So I'll have a variable sum that will be 0. Then I have to do sum of all elements. So I'll run a for loop for element in lst. Sum is equal to sum plus element, and here I'll return sum. Okay, now I'm writing main program to call this method. So I'm taking a list here L, and I've given some numbers to it. Then I'm passing this list to the function and storing the answer in the variable called s. So s is equal to sumList L. Okay, and print s. So how will this execution will go on? First of all, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर यहाँ पे चले जाएंगे 3 पे, फिर 4 पे, then we'll go to 5, then 6, then 7, and finally this 8. Okay, so this will be the execution of the lines. We have passed a list. List has been received to LST. All elements have been summed up, and the answer has been returned to S. Then we have printed S. So this is one example. Okay, let's write one more program. Write a program, not a program but a function. Okay, write a function to return a list by क्या करें, लिस्ट रिटर्न करने की कोशिश कर रहा हूं मैं इसमें, बाय रिवर्सिंग इट, लिस्ट आफ्टर रिवर्सिंग इट. ओके, सो हमने एक फंक्शन को एक लिस्ट भेजनी है और उसको रिटर्न कर देना है. ठीक है, सो एक सिंपल एग्जांपल मैं इसके लिए ले रहा हूं. def rev list, और यहाँ पे मैंने एक लिस्ट ले ली. अब इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं बच्चों? रिवर्स करने के लिए मैं इसको आधे तक चलाता हूँ लूप को और इनके एलिमेंट्स को रिवर्स कर देता हूँ. सो फॉर आई इन रेंज len of lst by 2, okay, plus 1, len of lst by 2 plus 1. ओके, देखते हैं ये कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं है. मान लीजिए 10 एलिमेंट्स हैं, तो पहले 5 को आखिरी 5 से स्वैप करना है. So if I say len of lst, so it will be 10, and I write 10 by 2, so it will become 5. Okay, then 0 to 4 will be swapped. I think this plus 1 is not needed.
this plus 1 is not needed. Okay, let's correct this also. So I'll write ln of LST by 2. Okay, now swap. So I can say LST at I, LST at I, comma LST at, what can I write here? I'm just doing this. L is equal to ln of LST. Okay, so LST at I is equal to LST at length minus 1 minus I is equal to LST len minus 1 minus I, comma LST at I. Okay, then I'll say return LST. Okay, then I can call this. So I'm writing main program for this. Let's have a list A. I'm putting some values into it. Okay, then I'm calling reverse of the list. So L is equal to rev list, ब्रैकेट में A भेजा मैंने, आंसर में मुझे LST मिल गया, लिस्ट रिवर्स होकर के मिल गई L में, देन आई कैन से प्रिंट L. ओके, तो अगर आप लोगों को लिस्ट आती है तो आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं. अगर लिस्ट के साथ प्रॉब्लम्स हैं तो ऑब्वियसली आप इन क्वेश्चंस को समझने में टाइम लगाएंगे. जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया है, अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, डाउट नहीं है देन इट इज ओके. व्हाट आई हैव डन हियर, लेट मी जस्ट टेल मी दिस. आई एम वेटिंग. आई एम आस्किंग व्हाट हैव वी डन इन दिस कोड. ये क्लियर है ये वाला कोड? वी हैव डन स्वैपिंग फर्स्ट एलिमेंट विद द लास्ट एलिमेंट्स, राइट? अगर आप चाहें तो आई कैन राइट कि ये कैसे हो रहा है. I is 0 1 2 3 4. ओके, सो स्पेस, चलो मैं फिर से इरेज करके लिख रहा हूं एक बार. So we can say I is equal to 0 1 2 3 4. So length 10 minus 1 minus I. So 10 minus 1 9 minus 0. So it will be 9 8 7 6 5. So for 0th element will be swapped with 9th, first with 8th, second with 7th and so on. Okay, ऐसे ये स्वैपिंग कर सकते हैं आप लोग. क्रॉस इंडेक्सिंग मैंने आप लोगों को बताया था, वी आर डूइंग क्रॉस इंडेक्सिंग ओनली. ओके, सो दिस इज द बेसिक आइडिया. हाउ कैन वी return a list, how can we pass a list to a function. So these are the basic things. Okay, now the last thing, जो आखिरी चीज है जो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं लिस्ट के बारे में. आज हम एक खास तरह के फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जिसको बोला जाता है लैम्डा फंक्शन. ओके, सो लैम्डा फंक्शन को समझने के लिए मैं यहां थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं. यहां पे देखिए, ध्यान से समझना. जब हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं जिस प्रोग्राम के अंदर फंक्शन हो, सो वी स्टार्ट एग्जीक्यूशन फ्रॉम हियर एंड वी कॉल द फंक्शन. सो दिस इज द स्टेटमेंट दैट इज कॉलिंग द फंक्शन. ओके, कॉलिंग द फंक्शन. व्हेन कॉलिंग इज डन, then the control is switched to the function. जब हम कॉलिंग करते हैं तो क्या होता है, ये जो हमारा कंट्रोल है जो यहां से हमने जब कॉलिंग किया तो ऊपर स्विच करता है, फिर एग्जीक्यूशन होता है और फिर हम नीचे आते हैं. तो इसको हम बोलते हैं स्विचिंग इन फंक्शंस. ओके, वी कॉल इट स्विचिंग इन फंक्शंस. सो ये जो स्विचिंग होती है बच्चों, ये कुछ टाइम लेती है बिकॉज कंपाइलर इसको सर्च करता है तब एग्जीक्यूट होता है. अब होता ये है कि जहां पे हमारे पास फंक्शंस बड़े होते हैं वहां पे तो स्विचिंग का टाइम फंक्शंस के एग्जीक्यूशन के टाइम के मुकाबले कम होता है, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं होता. लेकिन कई बार हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, कन्फाइंड टू वन लाइन वी कैन से.
बहुत छोटे फंक्शन, 1 लाइन या 2 लाइन के फंक्शंस होते हैं, तो उनको हम नॉर्मली फंक्शंस डिक्लेयर नहीं करते, उनको हम लैम्डा फंक्शंस बना देते हैं। लैम्डा फंक्शन का फायदा ये होता है कि लैम्डा फंक्शन की डेफिनेशन मतलब ये जो आपने प्रोग्रामिंग बॉडी लिखी है उसके साथ, लैम्डा फंक्शन की डेफिनेशन उसके कॉलिंग स्टेटमेंट को रिप्लेस कर देती है। तो ये स्विचिंग का जो टाइम है हमारे पास ये बच जाता है। क्या बोला मैंने? लैम्डा फंक्शन की कॉलिंग स्टेटमेंट उसकी बॉडी से रिप्लेस मान ली जाती है। ये लॉजिकल रिप्लेसमेंट होता है, इसमें एक्चुअली फिजिकली रिप्लेसमेंट नहीं होता है, बट ये मान लिया जाता है कि जब हम किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो क्योंकि वो फंक्शन छोटा है इसलिए वर्चुअली उसमें लिखा हुआ कोड यहीं पर मान लिया जाता है, तो उसमें हमारा जो स्विचिंग टाइम है ये टाइम हमारा सेव हो जाता है। लेकिन लैम्डा फंक्शंस के साथ लिमिटेशंस क्या है? लैम्डा फंक्शन बहुत छोटे फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शन जो बहुत छोटे हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए काम करता है, 1 लाइन फंक्शन, मैक्सिमम 1 लाइन फंक्शन, तो उनके लिए हम लोग लैम्डा फंक्शन लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया एक फंक्शन से सी एरिया, ओके, सी एरिया इज इक्वल टू लैम्डा एक्स या आर कोलन 3.14 इंटू आर। अभी हमने क्या किया? ये एक डेफिनेशन मैंने लिखी, ये सी एरिया इज द नेम ऑफ फंक्शन, ओके, सी एरिया इज द नेम ऑफ फंक्शन, lambda is a keyword that is telling that this is a lambda function, small function, right? This is argument, input, and this is function body. Is that okay? This is the name of the function. Lambda is a keyword that is telling that it is a lambda function. It's an argument. Then this is the description of the function, like what the function is doing. So it's a very small function, it's a very small command that is finding circles area. So this is a lambda function. Now how can we call this? If we have defined this, this is the 1 line definition, then how can we call it? I can say area is equal to C area, say 10, right? Area is equal to C area 10, and what answer we will get? We'll get 314 is the answer. So what will happen? This 10 will be assigned to R, and wherever in description R has been written, so it will be replaced. So it will be 3.14 into 10 into 10, so it will be 314 that we return to this variable. Then we can say print area, right? So this is basically lambda function. It's a very small concept that we can apply, although बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर एक ही तो लाइन लिखनी है, why to write a function? They are right up to a certain extent, but it is a provision wherein we can write all the lambda functions in the beginning only, and we need not to learn the command कि भाई इसके लिए हमने क्या description दिया है। तो कई बार ये कामयाब होता है, कई बार important लगता है, कई बार नहीं लगता है, but this is there in Python, so that's why we are learning it. Okay, about this if you have any query you can ask.